ओके, सो कल हमने देखा था ऑब्जेक्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट का बेसिक, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। एंड आज हम उनका देखने वाले हैं एडवांस पार्ट कि ये दोनों काम कैसे करते हैं। एंड ऑब्जेक्ट आपने बना लिया, देन व्हाट इज हैज द रिलेशनशिप, कैसे एक क्लास दूसरी क्लास के लिए एज अ डेटा टाइप काम कर सकती है। आज हम ये देखने वाले हैं हैज रिलेशनशिप के अंदर। एंड एक क्लास को प्रॉपर कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। Okay? So let's start. So yesterday, what we have seen, yesterday we created a human class, right? We created a human class, and this human class do have string name, right? This human class do have a string name, and I have given you a homework today. What was the homework? That you have to create a employee class, right? Create a employee class. So yesterday what we have done, we created a human class with a string name and a genetic. So and a human do have some method, like believe they do have greediness, and they can display their information. This all this method belongs to the human, right? And there was a method called, what was the method? There was a, what was the class? Demo class. डेमो क्लास क्या कर रही है? डेमो क्लास सिंपल है, ह्यूमन का ऑब्जेक्ट बना रही है। ह्यूमन ह्यूमन एक ह्यूमन है सचिन, राइट? एंड दिस इज व्हाई वी आर यूजिंग न्यू कीवर्ड। ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो कैसा ऑब्जेक्ट बनेगा? न्यू ह्यूमन। दिस ह्यूमन इज कमिंग फ्रॉम ह्यूमन, एंड दिस parenthesis is coming from this human.java class. This human.java class do have a constructor, what this constructor is doing, this constructor is generally help in construction of a object, है ना? तो ये लिखा भी है यहाँ पर, constructor, it is the constructor, it return will not return anything explicit। जैसे कि ये मेथड है बिलीव, ये तो रिटर्न कर रही है वॉइड, बट ये मेथड है ऊपर वाली, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रही है ना? एंड एक ये मेथड है जिसका फर्स्ट केस स्मॉल है, तो जनरली सारी मेथड का फर्स्ट केस स्मॉल होगा, है ना? ग्रीडीनेस का फर्स्ट केस स्मॉल है, डिस्प्ले का फर्स्ट केस स्मॉल है। बट दिस इज द मेथड, दिस इज a स्पेशल टाइप ऑफ मेथड which नेम इज सेम एज क्लास नेम। जैसा क्लास का नेम है वैसे इसका नाम रहेगा। एंड दिस इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग एक्सप्लिसिटली, but internally this method is returning the object of this human class. And while we are creating the object, this constructor will get automatically. Yesterday we have seen all this thing. And yes, this Sachin do have eye, leg, blindness, everything. And this Rahul object have a name, genetic code, and display also. So I hope this thing is clear for everyone. Do thumbs up if you got this much yesterday. Today we are going to start learning new things in what we can say in concept। आज जो हम पढ़ने बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या कर रहा हूँ? एम्प्लॉय, ध्यान से समझो, भी मैं आपको समझाऊंगा छोटी चीज़ें, ठीक है? सबसे पहले जो छोटी चीज़ है, आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर। दो तरह के, टू टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेस मॉडिफायर, राइट? तो कंस्ट्रक्टर अभी हम क्यों नो? तो दिस इज अ स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम एमपी, एंड एमपी, राइट? एंड दिस इज द स्ट्रिंग। आज का जो लेक्चर थोड़ा है ना, 8 बजे के बाद तक जाएगा ये। एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, एंड this is the data called double salary. Okay? A name, address, and salary are there. And I am creating this is the employee, right? Employee.
and this employee is what? It is the constructor, and we all know कि if we are not creating this constructor, अगर इसको create नहीं भी कर रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो डिफॉल्ट वन है। ठीक है, तो डिफॉल्ट, please make sure you are not if you are not practicing with me, so please make sure you are creating notes with me। ये प्रैक्टिस आप बाद में भी कर सकते हो, आई विल शेयर एवरीथिंग टू यू, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी फास्ट चल रही। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पब्लिक वॉइड, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए पब्लिक माय डिफॉल्ट, but along with the default constructor there is a one more constructor, the parameterized constructor is constructor. This parameterized constructor क्या कर रहा है, ध्यान से सुने। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या करता है? पैरामीटर लेता है। पैरामीटर क्या होता है? एक मेथड जब भी अपने अंदर कोई इनपुट ले रही है और उस इनपुट का यूटिलाइज कर रही है, एक मेथड जब भी अपने अंदर कोई इनपुट ले रही है और उस इनपुट का यूटिलाइज कर रही है कहीं भी कुछ भी कैलकुलेशन के लिए, तो वो जो इनपुट लेती है उसको पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, ये भी तो एक मेथड ही है सिर्फ। पब्लिक कैन एम्प्लॉय, एंड ये ध्यान से समझना, ये मेथड है, बट ये मेथड तीन चीज़ें ले रही है। क्या ले रही है? नेम, एड्रेस, सैलरी। स्ट्रिंग नेम एड्रेस सैलरी, string name, address, and double salary. All these three parameter are taken by this method, and while a method is taking the parameter, while you are declaring the method, you will declare this method is taking parameter. When you are declaring this method is taking parameter, you need to declare what kind of data type it is taking. What kind of data type it is taking. I hope you guys are getting what I want to say. I hope you guys are getting. चीजें क्लियर हो रही है? Okay. So yes, this method is taking three parameter, and how this special method is using this three parameter, guys. So this method is saying that there is an employee address name, employee name is there, and inside this employee name we are giving this name which is coming outside, which is coming from outside method, outside of, है ना, एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर बाहर से कहीं से हम नेम, वो नेम जाके फिट हो जाएगा क्लास के इस। So what is this keyword, guys? This keyword is used to used for the current class instance. For creating a current class instance. करंट क्लास का इंस्टेंस कि हम इसी क्लास का ये दिस एम्प्लॉयज को यूज कर रहे हैं, ये शो करने के लिए वी आर यूजिंग दिस, एंड सपोज वी आर नॉट यूजिंग इसमें दिस यूज, ये आपको इसका इम्पोर्टेंस का पता नहीं लगेगा यार। वैसा भी तो कर सकते हैं ये जावा को, क्या ये नहीं पता कि एम्प्लॉय नेम और एड्रेस कौन सा है? एग्जैक्ट में भी यही सोचता, लेकिन इसका अभी का यूज केस का है वो मैं डबल राइट। कई बार देखो प्रॉब्लम ये होती है, जैसे सैलरी है, ये सैलरी करो तो कौन सैलरी एक्टिव, दोनों। ठीक है, तो इस साइड जो है LHS साइड या लेफ्ट हैंड साइड जो चीज
क्लास की चीज़ भी एक आपको बताने के लिए आना पड़ेगा। This is the parameterized constructor. And this parameterized constructor definitely will return the object of this employee class, but while it will return the object, it will automatically fit all the data inside this variable. And yes, फिर क्या करना है, डिस्प्ले मेथड बना ले जैसा कल बनाया था, public void display, right? Public void display, and what this display method is doing, कुछ नहीं कर रही है, डिस्प्ले कर रही है डॉट आउट डॉट एंड दो employee name, right? एम्प्लॉय नेम कहाँ पर है, एम्प्लॉय का नेम, राइट? एंड डॉट प्रिंट, क्या हो एक ऐसी डिस्प्ले मेथड मेरे को हमेशा ही मिल जाए तो, इनबिल्ट डिस्प्ले मेथड मिल जाए तो क्या होगा, बहुत सारा टाइम बच जाएगा। गाइस प्लीज स्पीक अप ना, व्हाई यू गाइस आर नॉट स्पीकिंग, आई डोंट, बिकॉज आप कम समझ क्या कहना चाह रहे हो, कहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर, अच्छा गॉट यू, शायद ये कह रहे हो क्या, ये लिखना नहीं पड़ेगा कहाँ पे, बोलो बोलो। तो ये डिस्प्ले में, राइट? And inside that employee class, we have already created preview. Again, I am creating that employee. अभी जो बच्चा ये कहना चाह रहा था, don't know, क्या बोल रहे थे आप, कौन से वेरिएबल की बात कर रहे थे? ओके ओके, गॉट यू, ऑब्जेक्ट। ऐसा मेरे साथ भी होता था, मैं कभी क्लास को मेथड, मेथड को क्लास, कंस्ट्रक्ट, मॉडिफायर ये सब कर देता था, क्या होता था तब, इवन आफ्टर आई क्लियर माई इंटरव्यू एंड आई वॉज वर्किंग इन टू कंपनी, और वहाँ पर काम करने के 3 महीने काम करने के बाद, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय सेकंड इंटरव्यू, तब मैं देख रहा हूँ कि फिर से मुझे स्क्रैच से चीज़ें स्टार्ट करनी है जावा को ना, हम काम कर रहे थे, बट इंटरव्यू की प्रिपरेशन एक अलग चीज़ होती है, ठीक है? फिर से चीज़ें एकदम ऐसे स्टार्ट करी तो फिर से सब कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन वहाँ पर ऐसी, अब देखो ध्यान से समझ, ये जो एक E1 एम्प्लॉय, दिस E1 एम्प्लॉय इज यूजिंग दिस डिफॉल्ट, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं दे रहे हैं, और ये है पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर देना पड़ेगा, एक तो E1 एम्प्लॉय बना दिया, एंड यू जस्ट वांट, ये बच्चे अभी देखो आया, एंड सैलरी 0 ठीक है, एंड वी कैन सेव मैन्युअली डेटा आल्सो, इसके बाद एम्प्लॉय एंड E1 डॉट सैलरी, यस नाउ थर्ड around complete fine, right? But there is a one more way, declare everything one line, employee to employee, inside a new employee, first thing I'm mentioning name, address,
नेम, नेम है इसका एड्रेस, एड्रेस है सैलरी एंड यस। एक एरर आ गया वाली। I hope you guys are getting importance of this parameterized in which we can declare all the parameter in one line and all the हाँ, देखो यहाँ पर एक बात याद रखो, इसी बात है ये प्रोफेशनली, जब भी हम मेथड में चीज़ें पास कर रहे हैं, तो व्हेन वी आर पासिंग समथिंग इनटू मेथड इट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, वी आर गिविंग आर्ग्यूमेंट टू दिस, राइट? And actually when we are declaring a method, at that time we mention it as a parameter. Is it making any sense for you? समझ में आ रहा है? बहुत छोटी सी चीज, समझो। हम्म, तो ये तो हो गया होगा क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं। एम्प्लॉय वगैरह बना दिया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर एंड डिस्प्ले में। अब एक क्राच की बात सुनो, 20 रुपये इज दैट। रीचा, रीचा की डीपी जो है, शी इज शोइंग हर बैक। ओके, देखो इंग्लिश कितनी ऐसे मिक्स लैंग्वेज है ना, एक ही चीज़ों के मल्टीपल मीनिंग निकल जाते हैं। और हिंदी इतनी क्लियर लैंग्वेज है, हिंदी में आप बोलो ऋचा उधर का वॉट एवर स्टूडेंट नेम आई फॉरगॉट, बट स्टूडेंट उधर खड़ी है और उधर मुंह करके खड़ी है, तो इट साउंड्स कि चलो ठीक है, कुछ उधर मुंह कर रखा है गुस्से में, ठीक है। एंड इन इंग्लिश सपोज यू आर सेइंग, मतलब इस चीज़ को कहना एक अपने आप में एक अजीब सा एक केस है ना। आर यू गाइस गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट आर गेटिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके गाइस, सभी ना टाइम से ज्वाइन कर लिया, आई नो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक आज की बात ये बता, जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना, कौन सा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये हमेशा बनाओ, ठीक है? क्योंकि ये मान लो इसके बारे में एक अफवाह है, इज दैट अफवाह ये है कि मान लो इफ़ यू आर नॉट क्रिएटिंग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इट्स फाइन, it will be there, है ना? If you are not creating any constructor, let me mention everything. If you are not creating any constructor, then still you can create object, can create object, फिर भी ऑब्जेक्ट बनेगा ही, जब थोड़ी ना क्लास में कंस्ट्रक्टर हो तभी ऑब्जेक्ट बनेगा। ये देखो, ये अगर हटा दूं मैं ये वाला केस पैरामीटर वाला, क्योंकि अभी डिलीट कर दिया है, तो भी ऑब्जेक्ट तो बन ही रहा है। कहाँ से आ रहा है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से। समझना ये बात बहुत जरूरी है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से आ रहा है, राइट? अब ध्यान से देखना, ये कहाँ से आ रहा है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से आ रहा है। सब कुछ आगे समझ में, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है?
द मोमेंट यू आर डिक्लेयरिंग पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर, ये डिक्लेयर कर रहे हो ना, कौन सा बना दिया, पैरामीटर वाला बना दिया। जैसे ही आपने पैरामीटर वाला बनाया तो जो आपका ऑटोमेटिक डिफॉल्ट वाला आ रहा था, जो आपका ऑटोमेटिक डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर आ रहा था वो जा चुका है, अभी अभी वो कंस्ट्रक्टर नहीं है। लेट मी मेंशन इनटू notes also. When you are creating a parameter, let me, there is lots of background noise now from my end, just give. Okay, so reach a left meeting. चलो, so when you are creating the parameter constructor, what happening, जैसे आप पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हो, at default one will be गायब, वो गायब हो गया है ना। एक्चुअली वो कोई गायब नहीं होता, वो ओवरलोड हो जाता है ना। तो ओवरलोड क्या होता है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, बट अभी ये समझो, जैसे आपने पैरामीटर वाला बनाया तो डिफ़ॉल्ट आपको मिल रहा था वो अभी गायब हो गया है। एंड बेसिकली ये ओवरलोड हो जा रहा है, कौन, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है कंस्ट्रक्टर वहाँ पर, बट वो क्या बोल रहा है कि वो वाले कंस्ट्रक्टर को अब मैंने ओवरलोड कर लिया, मतलब कि मैं, देखो कंस्ट्रक्टर का नेम तो सेम है, ओवरलोड क्या होता है, सेम मेथड की बट पैरामीटर चाहिए। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अब वो पहले जो था, देखिए ये आ गया है, वो पहले वाला वर्क नहीं कर, तो इट इज द केस, डायरेक्ट लिखते हैं, व्हेन यू आर क्रिएटिंग पैरामीटर स्ट्रक्टर, then you need to create explicitly you guys need to create that default constructor। मतलब ये डिफ़ॉल्ट था तो था ही ऑटोमेटिक, लेकिन पैरामीटर वाला बना लिया तो गायब हो गया, वो ओवरलोड हो जाता है बेसिकली। बाद में समझ में आ जाएगा, अभी आप थोड़े से ये हो समझने के लिए, बट 2 दिन की बात। तो एट दैट टाइम यू नीड टू क्रिएट अ डिफ़ॉल्ट वन एक्सप्लिसिटली, इसको बनाओ, ठीक? तब जाके दोनों कंस्ट्रक्टर होंगे। आई होप यू गाइज आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट, एंड आई होप यू गाइज गेटिंग, समझ में आ रहा है बच्चों को। There will be fun Friday today, okay? But you guys need to turn on your camera. If there will be fun Friday, you guys need to turn on your camera. If you guys will not turn on your camera, there will be. Yeah, I will. Yes, yes, I will also. चलो, मानस मानस के आज मैंने पोस्ट, बढ़िया पोस्ट। चलो आगे बढ़े। देखो अभी हमने पढ़ लिया कंस्ट्रक्टर, ये याद रख लेना अच्छे से। अभी हम पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्टर के बाद एक अलग कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, डेट इज थोड़ा सा कह सकते हैं ऊप से रिलेटेड है, बट कह सकते हैं कि जैसे ऊप्स के अंदर ही आता है।
सो लेट मी चेक, क्लास बना लेते हैं। एक क्लास बनाई हमने चेक। चेक क्लास क्यों बनाई? भाई लाइव में चेक क्लास टाइम पे मेरे गाने पे वो परमिश का एक गाना है, गाइस हर्ट, डेफिनेटली परमिश का या फिर आई डोंट। चलो तो चेक क्लास क्यों बनाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू चेक एक्सेस। एक्सेस फटाफट से समझेंगे, आने वाले अभी हो रहे हैं 7-10, हम इसको 6-7 मिनट में कंप्लीट। दुनिया में कहीं भी जाने के लिए एक्सेस, दुनिया में कहीं भी जाने के लिए जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपके गले में एक हमेशा आई कार्ड होगा। तो वो आई कार्ड विल मेक यू एक्सेसिबल एवरीवेयर। उसके अंदर एक मैग्नेटिक पिन होती है, मैग्नेटिक का कोड होता है, यू कैन से। जैसे आपको इस रूम में जाना है आप उसको टैप करेंगे एंड उस रूम, तो दैट एक्सेस कार्ड। और उसमें ऐसा होता है कि मान लो आप क्यूए वाले हो तो क्यूए का ही रूम खुले, और आप मान लो कि डेवलपमेंट वाले हो तो डेवलपमेंट वाले ही रूम खुले, है ना। ऐसा एक फॉरेन जो कंपनी होती है, एमएनसीज जो होती है actually उनमें थोड़ा ये कह सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती है। बट इंडिया के अंदर जो इंडियन कंपनी है वहाँ पर कहीं कहीं पर टेबल का ही कुछ रहता है, ऐसा भी रहता है। ढंग का फर्नीचर ही इंडियन कंपनी कहीं कहीं पर, कैन से दिस थिंग। चलो तो इसी को समझना है हमको, एक्सेस मॉडिफायर को। जावा में हर चीज़ के लिए एक्सेस देने के लिए देर आर 4 एक्सेस मॉडिफायर। क्या दोस्त? पब्लिक एंड लेट मी, हायरार्की नहीं बोलेंगे, लेवल। प्राइवेट सबसे छोटा एक्सेस मॉडिफायर, ये क्लास तक ही सीमित रहेगा। प्राइवेट, पब्लिक, देन प्राइवेट के बाद डिफॉल्ट। 4 तरह के आई कार्ड है जावा के अंदर। डिफॉल्ट, प्राइवेट, व्हाट इज अनदर वन? प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, राइट। एंड द लास्ट वन, फटाफट समझो, प्राइवेट सिर्फ क्लास में, डिफॉल्ट पूरे पैकेज में एक्सेस होगा इसका ओनली, प्रोटेक्टेड पूरे पैकेज, प्योर नहीं लिखा, हिंदी लिखी है, ठीक है, पूरे पैकेज। एंड पूरे पैकेज में एक्सेस होगा, एंड कहाँ एक्सेस होगा? अदर पैकेज बाई क्लास, दूसरे पैकेज में चाइल्ड क्लास है। पब्लिक प्रोजेक्ट में एक्सेस, पब्लिक इज द किंग एक्सेस मॉडिफायर। सबसे छोटा प्रोटेक्टेड, उससे छोटा डिफॉल्ट, प्राइवेट मतलब सबसे छोटा। लेट मी हियर, मान लो कि है एम्प्लॉय की सैलरी है प्राइवेट, मेंशन कर दी प्राइवेट। डेमो के अंदर ई डॉट सैलरी, देखो एम्प्लॉय 1 की सैलरी आएगा ही नहीं अब। क्यों? देखो लिख भी देता हूँ, सैलरी 8,000 सैलरी है। क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है? चेंज विजिबल सैलरी पैकेज, क्या हो गया भाई? सैलरी की एम्प्लॉय के अंदर है, पैकेज में भी क्लास लेवल पे है, दैट इज द इशू। आई होप यू गाइस आर गेट 2 thumbs up, आई नीड। अनुष्का ने बोला कोई नहीं कर रहा है, मैं करते जा, ये 20, ठीक है, ये 20 thumbs up पकड़ो एंड पढ़ाओ। अनुष्का
चलो guys, you guys need to turn on your camera ना after start some stand up comedy. चलो तो ये चीज फटाफट देखो। प्राइवेट सिर्फ क्लास तक है, याद रख लो, सिर्फ क्लास तक है। देखो बहुत सारे ट्रेनर ना इसको ऐसे पढ़ाते हैं, घर की बात होती है, ऐसे बोलते हैं, देखो बेटे जो घर के, फिर घर के बच्चे घर में चले, मैं वैसे नहीं समझा रहा हूँ, इतने डम नहीं लगता। तो प्राइवेट यानी उस क्लास तक। अब आ जाओ डिफ़ॉल्ट क्या होता है। डिफ़ॉल्ट यानी पूरे पैकेज तक, इफ़ यू आर नॉट डिक्लेयरिंग एनीथिंग स्पेशल ना, तो दैट विल बी डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली। ये डिफ़ॉल्ट आप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। डिफ़ॉल्ट इज डिफ़ॉल्ट ओनली, है ना, ऑलरेडी इट इज़ डिफ़ॉल्ट। सो व्हाइल आई एम एक्सेसिंग इनटू द डे आर एबल टू एक्सेस देम। वाला जाओ देखो, ये उप्स पैकेज दिख रहा है, क्लियर है। दूसरा पैकेज कौन सा, जावा स्टेटमेंट। आई वांट एक थिंग। दूसरा कोई पैकेज, एवरीथिंग इज फाइन, बट प्रॉब्लम इज दैट चेंज पब्लिक, पब्लिक करो भाई। से आपकी ये जो है एम्प्लॉय, ये है एक्सेस कम है, दूसरे पैकेज में नहीं जा पा रहा है। ये सेम पैकेज है ना ओप्स, इसको कहीं भी एक्सेस कर, लेकिन दूसरे पैकेज में एक्सेस नहीं है। डिफ़ॉल्ट का दूसरे पैकेज में एक्सेस नहीं है, हो जाएगा याद ये। पहले मैं कैसे समझ, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। पहले मैं समझाता था कार के एग्जांपल से, तो एसयूवी क्लास है, एंड हैचबैक क्लास है, एंड सेडान क्लास है। तो सारी लड़कियां मुझसे कह रही कि सर ये क्या, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, एंड या रेजिंग क्वेश्चन है, कौन सी एसयूवी गाड़ी कौन सी होती है, हैचबैक कौन सी होती है, सेडान कौन सी, मिनी ट्रक कौन सा होता है। डेफिनेटली। ठीक है, तो लेट्स मूव। ठीक है, हो जाता है ना किसी किसी को गाड़ी की लाइफ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखो, वी हैव डिस्कस्ड one thing that is private, and the second thing that is default. We already discussed this identifier. I hope you don't have any doubt in both. Now third one is protected, क्या लिखा है, ये पैकेज है एंड अनदर पैकेज बाय चाइल्ड। देखो ये राइट, दूसरे पैकेज में तो कहीं भी एक्सेस हो, साइंस नहीं, राइट। देखो इसको पूरे, ये एम्प्लॉय डेमो के प्रोटेक्टेड में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, जब का नाम जो है प्रोटेक्टेड है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पब्लिक प्रोटेक्टेड को स्टिल, नाम की, नाम को प्रोटेक्टेड कर दिया ना पब्लिक के हमने, सॉरी प्रोटेक्टेड कर रखा ना, तो भी क्या बोल रहा है, पब्लिक करो, प्रोटेक्टेड भी एक्सेस नहीं है। तो दूसरे पैकेज में एक्सेस नहीं होता है, कौन, प्रोटेक्टेड, याद रखना है बात, याद हो जाएगी। ठीक है,
लेकिन दूसरे पैकेज में क्या बोला मैंने, दूसरे कोई पैकेज में, ऊपर वाले पैकेज, आई एम क्रिएटिंग एम्प्लॉय के बाद एक कोई डेवलपर क्लास है, एंड दिस क्लास चाइल्ड, दिस क्लास child, class is child of employee, class is child extend class extend कर रहा है developer class, so this developer class can get a property of its employee, its parent class, that's why it is extending MP by import. So we are in another package, employees in this package, right? And Java statement is other package. In another package, if we want that employee to extend and we of employee, we need to import this employee from oops package. समझ में आ रही है? import करना पड़ेगा. And this developer do have its own. Right? This bonus डेवलपर का हो गया बोनस, है ना? अब ध्यान, एम्प्लॉय कैन एक्सेस नेम क्या, माय चाइल्ड क्लास developer d, and this developer right, and whether yes it is class we want. Here I can write getting access to child class of employee in another package. तो क्या समझे, यही कि प्रोटेक्टेड जो चीजें हैं, प्रोटेक्टेड जो चीज that can be access package में, but in other package by, I hope. One more thing I want to mention, that is, and this public एम्प्लॉय के अंदर कुछ भी पब्लिक बना देते हैं, एम्प्लॉय का एड्रेस. अब डेमो का उस कोई रिलेशन नहीं है, इस डेमो का देख लो, डेमो क्लियर अलग है एक. But we have understood, we understand there are 4 access modifier in Java, and access modifier कौन कौन
तरह के हैं वो चेक में दिखेंगे। फर्स्ट इज 4 तरह के लिए एक टी पॉइंट वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर एक टेबल बनी, इसके में टेबल अभी इनके लिए याद नहीं, ठीक है। आई होप यू गॉट आइडिया अबाउट दिस। 6 to 8 है ना हमारा लेक्चर, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एंड आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है, एंड share and subscribe, and I'm requesting you please follow this entire Java series so get a better idea, and please do comment, and please do like if you are liking the video. Bye bye.